from NCERT only? NCERT में तो लाइन में से ही था, कहीं और बाहर तो क्वेश्चन नहीं आता। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ऐसा मत सोचो कि तो आपको लग रहा है कहाँ क्या गलती हुआ है, एनालिसिस करो आप अच्छे से, एंड कम आउट विद सॉल्यूशन। चुप रहिए। So we are starting with our chapter plant kingdom. So now the meaning of kingdom word क्या होता है? साम्राज्य। kingdom क्या होता है? साम्राज्य। जैसा आपने सुना होगा संभाजी महाराज का साम्राज्य, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य पता नहीं क्या बोलते हैं। बाहुबली क्या था? मराठा साम्राज्य, महेश्वरी, whatever it is, है ना? So ज़्यादा करना सभी। So the kingdom of plant is very very important. If there is no kingdom of plant, then there is no kingdom of Chhatrapati Shivaji Maharaj. There is no kingdom of humans, and there is no kingdom of anyone. Why kingdom of plant is so important? पढ़ जाओ, उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाए, जगह खाली है जहाँ पे, पढ़ जाओ। आज आगे के बैठो, जल्दी पढ़ाई करो आज आगे की। बहुत मस्ती करते हो तुम, सेकंड लास्ट से जरा टॉप में आओ कभी तो थोड़ा चले आओ, तुम्हारे पेरेंट्स को बोल पाए हम कि भैया ओमकार पढ़ाई भी करता है कभी कभी। तो किंगडम ऑफ प्लांट के ऊपर ही बाकी सारे किंगडम डिपेंडेंट है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन है प्लांट्स? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं हम? जो धरती लागा को प्रोड्यूसर करता है, या कोई मिल जाएगा प्रोड्यूसर कौन? वो प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है। कौन से प्रोड्यूसर की बात हो रही है? which is doing photosynthesis. So plants are doing photosynthesis and they are producing food. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो? फूड। और उनके फूड के ऊपर ही बाकी सब लोग आधारित हैं। So therefore, if there will be no kingdom of plants, there will be no kingdom of other organisms. है ना बेटा, बात नहीं करना था पीछे पड़ा। तो kingdom plant दिया है ना, we are going to start. So plants are very unique. हम लोग देखेंगे कैसे they are playing a very important role in ecosystem. And whatever in our daily life we are using, from the morning till the evening, you find many things are coming only from plants. The clothes you are wearing, that clothes has come from plants. The food you are eating, that food comes from plant. The paper on which you are writing, the paper comes from plant. The table on which you are sitting, that also comes from plant. The most of the chemical oil you use in the daytime, that oil is come from plant. That's all. टूथपेस्ट, बाउल, दंत मंजन, पता नहीं है क्या, दंत कांति, जब हम यूज करते हैं, the most of the main chemicals of that toothpaste that comes from plant. That's all. So if you see like this, so most of the activities that you do, you are playing cricket, you are using the bat, that comes from plant. Very good. So ball doesn't come from plants. लेदर एनिमल से आता है, प्लांट से कहाँ से लेदर? हाँ वो रहते रबर प्लांट से नहीं आते हैं, and leather also doesn't come from plant, leather comes from animal. Hare Krishna. So therefore plant plays a very important role in our life, and not only economic importance, plants are also very philosophically important. They teach us so many good lessons. That's all. They provide shade to every organism without doing any discrimination. They're helping everyone. तो discrimination कर देगा प्लांट है, कुत्ता है, मैंने नीचे बता रहा है। A dog goes, an animal goes, or whatever, and शुभम जाएगा, सारंग पाटिल जाएगा, कोई भी जाएगा, कोई लात मारे, कोई प्यार करे, he gives shade to everyone. That is called as what? Yes, kindness. It is humility to tolerate the difficulties. So plants, we will discuss. Now before that, NCERT describes, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में, कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, उनको क्लासिफाई करने के लिए आपको बहुत सारा क्या चाहिए, मगजमारी करना है काम, है ना? So therefore we need to classify them into different main groups. तो हमने 5 kingdom क्लासिफिकेशन आया था, तो ये सबसे पहले 3 kingdom, 2 kingdom, ऐसा आप लोगों को, है ना? एरिस्टोटल ने ट्राई किया था. So this is how many scientists tried to classify plants also.
तो जब प्लांट को क्लासिफाई करना शुरू किया, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रयास किया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, वो थे कौन? एरिस्टोटल और लीनियस। कौन से साइंटिस्ट? एरिस्टोटल और लीनियस। तो एरिस्टोटल और लीनियस ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके प्लांट को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। इसके ऊपर बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, देयर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रपोज किया उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So the system of classification proposed by Aristotle and Linnaeus was based on what? Morphology. अगर अब इसमें क्या है कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस से प्लांट्स को विभाजित करना एक अच्छा आइडिया नहीं है ना। क्यों अच्छा आइडिया नहीं है प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड करना? मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि सपोज कोई आपको तीन नाम बताते हैं, जैसे कोई लोटस है, कैक्टस है और एक बैनियन ट्री या मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री कहाँ होता है? हवा में, आसमान में, पानी में? जमीन में। वेरी गुड। लोटस का प्लांट कहाँ होता है? पानी में। कैक्टस कहाँ होता है? डेजर्ट में। जमीन में लेकिन डेजर्ट है ना, रेती के ऊपर। Now all these three have very different morphology. Yes or no? स्टेम के अंदर देखो तो लीफ पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। स्टेम एकदम से लॉन्ग ट्यूब लाइक स्टेम है वहां पर, which is inside the water, है ना। कैक्टस के अंदर चाहे आपका ग्रीन हो गया है, लीव्स आपके कैसे हो गए हैं? स्पाइन के जैसे हो गए। आर दे डूइंग फोटोसिंथेसिस लीव्स? नो, दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में, है ना। लीव्स बिकम स्पाइनी इन कैक्टस। देन थर्ड वन अपना मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री अपना प्रॉपर फुल फ्रेश नॉर्मल ट्री है जबको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाया जाता है। नाउ इन तीनों को अगर आप देखो बाहर से तो आपको दिखने में तीनों प्लांट कैसे दिख रहे हैं? एक जैसे क्या अलग अलग? अलग अलग, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांट किंगडम दे आर प्लेस्ड ऑल टुगेदर। वो तीनों को एक ही साथ रखा गया है। व्हाई? बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली देखने में वो तीनों प्लांट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर लाइफ साइकिल इज वेरी मच सिमिलर, बिकॉज दे ऑल प्रोड्यूस फ्लावर्स। प्रोडक्ट का फ्लावर आता ही है। मैंगो में फूल आते कि नहीं आते? आपने देखा कि मैंगो के फ्लावर्स आते हैं, है ना। मैंने हैव सीन द, आपने देखा होगा कि नहीं कैक्टस के अंदर भी फ्लावर्स आते हैं। तो कैक्टस आल्सो हैज फ्लावर, कैक्टस आल्सो हैज फ्रूट। So all the three are flowering plants. तीनों के तीनों क्या है? Flowering plant. So even though externally they may appear very different, है ना, ऐसा लग रहा है कि तीनों अलग अलग प्रजाति के प्लांट हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म से, लेकिन नहीं, ये तीनों कैसे हैं? दे आर क्लोजली रिलेटेड और अनरिलेटेड रिलेटेड। Morphologically they are unrelated, but if you take into consideration other characteristics, then they all are very much related. तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एरिस्टोटल और लीनियस ने क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन क्या अच्छा क्लासिफिकेशन था? तो नहीं, ये क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं था। तो आपको मेन रीजन बता दिया मैंने, है ना, दैट इवन दो the organisms were very same, they were of same characteristics, but because of their different morphology, they were separated. The first drawback of this classification, कौन सा classification? Artificial system of classification. कौन सा classification? Artificial system of classification. किसने लिया था? एरिस्टोटल और लीनियस। और इन्होंने बताया कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस में क्लासिफाई किया, और पहला ड्रॉबैक था इनका that the closely related species were separated. Please repeat. Closely related species were separated. जो कि अच्छी बात नहीं है ना। कोई दो प्रिंस है जो भाई है ना, पर वो दिखने में प्रिंस नहीं, दो भाई है वो दिखने में अलग है। इसका मतलब ये क्या? चल भाई तू भाग यहाँ से, घर में से निकल, तो पीछे से दिखता नहीं है, तो माँ के देता है ना, बाप के साथ दिखता है, भाग यहाँ से। ऐसा करना अच्छा है क्या? अरे नहीं, यू गोइंग चाहिए डीएनए। अरे आप डीएनए चेक करो, क्या मिला आपको? डीएनए बहुत सेम मिलेगा। देखने में भले आपको बेटे से लग नहीं रहा है, और उसका डीएनए क्या है? सेम। तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी दे व्हाट दे डिड, दे सेपरेटेड, इनको सेपरेट कर दिया क्लोजली। ये वर्ड एनसीईआरटी के वर्ड है, मेरे वर्ड्स नहीं, किसके वर्ड है ये? एनसीईआरटी के। क्या है लिखा हुआ? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वेर सेपरेटेड। समझ आ गया पहला ड्रॉबैक सभी को? पहले का। Now the second drawback of this classification was that they gave equal importance. Now morphology में दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं क्या? सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब बताओ प्लांट का लीफ कैसा है? ये सेक्सुअल कैरेक्टर है या वेजिटेटिव कैरेक्टर है? रूट कैसा है, वो कौन सा है? वेजिटेटिव की सेक्सुअल कैरेक्टर?
Root is vegetative, na? Does root participate in reproduction? No. So it is a vegetative character. Stem कहता है. It is also vegetative. But how the flower looks like? Is it a sexual characteristic? Yes or no? तो अभी एक प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोलेगा ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्लांट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट। तो सबके पास क्लोरोप्लास्ट रहेगा? यस और नो? ऑल प्लांट्स विल हैव अ ग्रीन पोर्शन और नॉट? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में सेम रहेगा। यू विल फाइंड दिस एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक सबके पास ग्रीन पोर्शन प्रेजेंट है जो ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। और जो ये ग्रीन पोर्शन है प्लांट की बॉडी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए बताओ? अब प्लांट को क्या देते हो जिंदा रखने के लिए? पानी देते हो ना? और क्या देते हो? सनलाइट और मिनरल्स, है ना? खाद डालते हो आप, है ना? फर्टाइजर्स, मैन्योर, उसके द्वारा प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। यस और नो? है ना? और ये जो चीजें अप्लाई सप्लाई करते हो प्लांट को वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? रूट्स की तरफ। यू विल फाइंड देयर विल बी स्ट्रक्चर्स लाइक रूट्स। तो रूट स्टेम, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, और लीफ रूट स्टेम, आपको ये स्ट्रक्चर सारे इनके मिलेंगे। या तो रूट लाइक मिलेगा या तो रूट मिलेगा, या तो स्टेम लाइक मिलेगा या तो स्टेम मिलेगा, या तो लीफ लाइक मिलेगा या तो लीफ मिलेगा। सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन ऑल द प्लांट्स आर सम और द अदर वेरी सिमिलर। बहुत डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस मेनली प्लांट्स हमको देखने को मिलता है वो उनके कौन से कैरेक्टर्स में? सेक्सुअल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर्स में? सेक्सुअल। ऑन द बेस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन द प्लांट, बट बेस्ड ऑन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट के अंदर। तो इन लोगों ने दो जो दिव्य आत्माएं थी, कौन से दो दिव्य आत्माएं? एरिस्टोटल और लिनियस। इनको भले ही इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। लेकिन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई करने के साथ साथ इनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। लेकिन थोड़े से इन लोगों ने ये किया, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस इक्वली दिया, किसके बराबर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। they gave equal importance to Pratmesh, vegetarian characters and sexual characters। vegetarian characters और sexual characters को कितने इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने? इक्वल इंपॉर्टेंस, जो कि अच्छी बात थी क्या? नहीं। और सेक्सुअल कैरेक्टर्स में से भी लीनियस ने सिर्फ एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है उसको ध्यान में रखा। सेक्सुअल कैरेक्टर्स में से भी किसको ध्यान में रखा? केवल स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। किसने? लीनियस ने। व्हाट इज एंड्रोशियम? कौन बताएगा? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। व्हाट इज द सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम? स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। हर्षल बताओ, स्टेमन के दो पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट इधर पीछे। सितेश, सितेश, हाँ? एंथर स्टिग्मा है, एंथर मेल है, स्टिग्मा फीमेल है बेटा। बायोसेक्सुअल बना दिया तुमने। एंड्रोशियम मेल है, हाँ। एंथर और, वेरी गुड, एंथर और फिलामेंट, these are the two parts of stamen। और इस stamen से पहले क्या बन जाता है? एंड्रोशियम। तो उन्होंने जो लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ किसको ध्यान में रखा? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर। किसको ध्यान में रखा? केवल एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। जो कि अच्छी बात है क्या? एक जैसे सेक्सुअल कैरेक्टर से बाकी लोगों को कंसीडर करो, नहीं, हम तो किसको ध्यान देंगे? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। So these are the two main drawbacks of this system of classification। है तो किसी को डाउट है? पक्का क्लियर है सभी को? पक्का, वेरी गुड। तो अब आप लोग लिखिए द प्लांट्स, द प्लांट the plant plays a very important role in our ecosystem। The plant plays a very important role in our ecosystem। In our ecosystem, mainly of photosynthesis, mainly of photosynthesis and mainly of photosynthesis and
provider of many basic needs. Provider of many basic needs. जैसे आपने सुना होगा दातुन, दातुन सुना होगा मैंने। तो नीम से वो स्टिक्स को काट के लोग दातुन करते हैं। तो दांत साफ करने के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। एक प्लांट आएगा इक्विसेटम। कौन सा प्लांट? इक्विसेटम। वो इक्विसेटम प्लांट से, वो प्लांट के स्टेम से आप बर्तन भी साफ कर सकते हैं। आपने पूछा लिया ना, पूछा कर होता है ना? बर्तन साफ करने के लिए होता है ना, स्टील का होता है, क्या बोलते हैं आप लोग मराठी में? हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? घासनी। हाँ, तो वो स्टेम से क्या था, इक्विसेटम नाम का प्लांट है, उसके स्टेम को आप लोग यूज करते हैं एज खाद। नाइस अपना, है ना? एक ऐसा प्लांट आता है स्पैगनम नाम का। कौन सा नाम है? स्पैगनम। आपको घाव लग गया है ना, and it won't appears, then you can take just the plant and apply it. It has antiseptic properties like Dettol also, and it has absorbing properties like cotton also. तो घाव लग जाता है तो क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन में क्या लगाते हैं? डेटॉल। और लगा तो ठीक रहता है कि नहीं? तो हमने स्पैगनम लिया, ऐसे लगा दिया। तो it has antiseptic properties like Dettol also, antibacterial properties, बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं होंगे, and it has absorbing capacities like cotton also. जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वो प्लांट को बहुत यूज किया गया था सोल्जर्स के द्वारा, कि कौन भैया वहाँ पे डेटॉल निकालेगा, घाव लगाएगा, इतना मगजमारी करेगा, जहाँ घाव लगा इसका एकदम लगाओ दबा दो। दिस इज अमेजिंग थिंग अबाउट प्लांट्स, यस और नो? नाउ अभी तो ध्यान से सुनना सभी, है ना? तो अभी हेडिंग डालिए आप लोग, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिखो, आप हेडिंग लिखो क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पायोनियर, ये पायोनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट हु स्टार्टेड, जैसे कि पायनियर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान कौन है? हैं? नरेंद्र मोदी भी है। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, नरेंद्र मोदी ने चालू कराया था शुभम। कब चालू किया था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन चालू किया था उन्होंने। कौन सा साल? 2014, व्हाट आई रिमेम्बर, 2014, है ना? तो चुप एकदम। तो कहने का मतलब क्या है? पानी मतलब कि वन हु स्टार्ट समथिंग। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग किसने स्टार्ट किया था? बताया ना आपको, एरिस्टोटल ने दिया। तो पायनियर में नाम किसका आ जाएगा? एरिस्टोटल एंड लीनियस। एरिस्टोटल एंड लीनियस। What was their basis of classification? उनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? मॉर्फोलॉजी, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। Basis of their classification was external appearance, that is morphology. है ना clear सभी को? Next, what is the drawback of their system of classification? चलो, equal importance to vegetarian sexual characters। और सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी लीनियस ने किसको इंपॉर्टेंस दिया था? है ना? एंड्रोशन के स्ट्रक्चर को। सेकंड, क्लोजली रिलेटेड species were separated or not? Closely related species were
well separated. WERE, well separated. बाकी लोग सब घर का चले गए क्या? एक क्रिसमस मना रहे हैं लोग, न्यू ईयर मना देंगे। जिंगल बेल ना शायद, बड़ा जिंगल बेल चल रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? शांति से बैठो, तुम्हारा वापस से फॉर्म वापस आ रहा है, ऑपरेशन बंद कर रखो। वेरी गुड शुभम, ज्यादा ज्यादा इसके साथ वो नहीं करने का है ना, तुम जिसके साथ बैठते हो उसके साथ तो मस्ती करते हो। तुम डेकर वाले ही हो ना, डेकर वाले ना तुम, हॉस्टल। चलिए देख ले सभी ने इतना। Now comes next classification system. So next system comes and it was given by scientists Bentham and Hooker. किसने दिया था? Bentham and Hooker. अरे नाम है भैया, जैसे मत देखो तुम, लिख लेना सभी ने। इतना आराम आराम से लिखना नहीं है वो, चैप्टर चालू हुआ तो भैया तुम मुझे डिजाइन डिजाइन बना के लिख रहे हो, फटाफट लिखना है तुमको। ये आखिर तुम्हारी स्टार्टिंग में तो मक्खन जैसी हैंडराइटिंग आती है, आखिर में कीड़े मकोड़े निकालते हो। आपके बाजू में खड़े हैं, हमारे बात कर रहे हैं। अरे साइड इफेक्ट ये हुआ ना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज है जिनको प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए था, उनको प्रॉपरली डिवाइड ही नहीं किया। अब अभी आप मॉर्फोलॉजी के बेस पे पढ़ रहे हो कि ये अलग अलग कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स है, दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, बट ओरिजिनली दे डोंट बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो होगा क्या नुकसान? कोई नया ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर होगा, तो नए ऑर्गेनिज्म को या इसके ऊपर स्टडी करोगे बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, और उसकी जैसे मॉर्फोलॉजी मैच करेगी उसके बदल दोगे उसको, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो, तो लाइफ साइकिल इससे अलग है ना। तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलना चाहिए, आप सोचोगे कि इधर तो दिखने में ही जैसे इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर भी ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो देन जस्ट लाइक हम लोग पढ़ेंगे फैबेसी फैमिली का, आपने पढ़ाया था तो फैबेसी फैमिली, तो फैबेसी फैमिली में सारी पल्सेस थी, ठीक है, सारी पल्सेस है ना, पल्सेस थी ना सारी, चना दाल जो ग्रुप ग्राम ये सब पढ़ा हम लोगों ने। तो बिकॉज ऑल द pulses show same characteristics, not only morphologically but internally also, they all were kept together and they all were used with the same purpose. If they all are not showing same characteristics, they will not be under the same category and they will not show the same purpose, है ना। So that will be the drawback in this morphology characteristic. So next comes by the two scientists Bentham and Hooker. अभी दोनों को दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट है। अब इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया वो इनसे अच्छा था, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला वाला हमने जो पढ़ा, ये कौन सा पढ़ा अभी हमने? आर्टिफिशियल। इसके वजह दूसरा वाला है वो कौन सा है? नेचुरल। तो लिखो आप लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये क्यों बेटर था आर्टिफिशियल वाले से, हम लोग देखेंगे। कौन इनके पायनियर थे, तो नाम आपको याद रखना है, बेंथम एंड हुक। और इनके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को ही हम लोग आज पढ़ना इस चैप्टर में फॉलो करेंगे। एक्चुअल में इनसे भी अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास है, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स थे एंड इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, in field of science we follow too many things by we are not Britishers, so therefore we follow the natural system of classification. So this system of classification, the medicine log ऊपर लिखते रहना। So basis of this system of classification was not only morphology but anatomy as well, because morphology is external appearance, anatomy is internal structure. With that they considered the cell biology, how the cell is taking, how the cell activity is there, तो सेल बायोलॉजी को भी ध्यान में रखा।
तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी को भी ध्यान में रखें इन्होंने। साथ ही साथ फाइटोकेमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? फाइटोकेमिस्ट्री, की जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है उनके अंदर कौन कौन से तरह के मेटाबॉलिट्स बन रहे हैं, कौन कौन तरह के केमिकल्स बन रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखें। तो दैट इज कॉल्ड एज फाइटोकेमिस्ट्री। तो 5 चीजों को बेसिस बनाया इन्होंने: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। कौन कौन सी 5 चीजें? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। इन 5 फील्ड को उन्होंने बेसिस बनाया। हर एक प्लांट के इन 5 चीजों को कंसिडर करके उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So because multiple things, multiple fields of science were taken into consideration, this stands better than आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका एक ही ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक था? इन्होंने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को काउंट नहीं किया। अब हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, एक था एंसेस्ट्रल हिस्ट्री और एक था लाइफ हिस्ट्री। दोनों के लिए वर्ड यूज किए थे हमने। क्या वर्ड यूज थे? ऑन्टो, ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी फॉर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फाइलोजेनी फॉर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन आएगा, दैट दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर फाइलोजेनी को भी कंसिडर किया गया, एंड दैट वाज गिवन बाय तख्ताजन हटचिंसन प्लांट एंड एनिमल। हरे कृष्ण। नाम पढ़ेंगे हम। अगर देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एंड फाइटोकेमिस्ट्री। क्या होगा? तुम लोग हंस के रहेंगे। और ठीक है, हो गया? सभी लिख लिया? अरे इतना हरा हो रहा है मेरे को क्या? हम्म। हम्म। So now next is phylogenetic system of classification. So phylogenetic system classification was the best, is the best system. Why? क्योंकि इसमें इन सारी फील्ड को ध्यान में रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ क्या ऐड होगा उसके अंदर? फाइलोजेनी ऐड हो जाएगा, है ना? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब के साथ साथ और क्या ऐड हो जाएगा? फाइलोजेनी। So that system of classification is even more advanced than this system of classification. तो पहला हमने जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? आर्टिफिशियल। किसने दिया था? सेकंड कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? नेचुरल। किसने दिया था? मैंथामेन। और तीसरा भी किसने दिया है? तो सुनिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा हेडिंग।
यहाँ पर जो, हाँ, क्यों ये TAKHDAJA है, तख्ताजन। हाँ, ये हटचिंसन, ये PRANTL, प्राण। तख्ताजन, हटचिंसन, प्राण, एंगलर। मेन लेजर मुकेश नहीं है ये, चार अलग अलग सेंटेंस है। कोई एंटीजन नहीं है। चलो देख लिया सभी ने। हम्म? तो देख लिया सभी ने, यस और नो?
Okay, now comes branches of taxonomy. आइडिया डालिए आप लोग। तो लोगों ने तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, कौन कौन से? आर्टिफिशियल, नेचुरल और बायोलॉजिकल। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ध्यान से सुनना सभी को। तो ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है चार चीजें: कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। है ना आप लोगों को? ये चारों चीज हम करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। और स्टडी ऑफ टैक्सोन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। है ना? कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसको नाम देना, नॉमेनक्लेचर। ये फोर एक्टिविटीज आर जस्ट कॉल्ड एज फोर स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। नाउ इन चारों स्टेप्स का, कौन कौन से चार स्टेप्स? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इन चारों स्टेप्स का बेसिस क्या है, उसके ऊपर हमारे पास तीन ब्रांचेस है टैक्सोनॉमी। कितने ब्रांचेस है? तीन ब्रांचेस। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है ये? कीमो से आप लोग पता नहीं क्या याद आ रहा होगा, नहीं, कीमो का मतलब होता है केमिकल। क्या मतलब है कीमो का? केमिकल। तो केमिकल मतलब क्या? कि जो प्लांट है, वो प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर देयर इन द प्लांट। और इस केमिकल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। तो डीएनए क्या है? बायोमोलिक्यूल। है ना? प्रोटीन क्या है आपका? बायोमोलिक्यूल। स्टार्च क्या है? बायोमोलिक्यूल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर बायोमोलिक्यूल? ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो डीएनए बायोमोलिक्यूल है, आरएनए बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल है, स्टार्च बायोमोलिक्यूल। तो किस तरह का डीएनए है, किस तरह का आरएनए है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से टेक्सोनॉमी के अंदर जाएंगे? कीमोटेक्सोनॉमी। जैसे हम जानते हैं कि जो डीएनए है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ द डीएनए? न्यूक्लियस में। और ये डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या कैरी करता है डीएनए? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और वो डीएनए के बेसिस पे पता कर सकते हो कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जस्ट बाय यू आर हैविंग द डीएनए। किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए आपके पास है, एंड इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ द डीएनए, यू कैन अंडरस्टैंड दिस डीएनए इज ऑफ व्हिच ऑर्गेनिज्म। Yes or no? Yes. That is called as DNA sequencing। क्या बोलते हैं इसको हम? DNA sequencing। तो अभी जब हम डीएनए की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं, या उनके आरएनए के बेसिस पे, प्रोटीन के बेसिस पे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल के बेसिस पे, तो फिर वो टेक्सोनॉमी कौन सी टेक्सोनॉमी कहलाएगी? कीमोटेक्सोनॉमी। So chemotaxonomy is the branch where basis of taxonomy is what? The chemical constitution। कौन सा constitution? Chemical constitution। कौन कौन से केमिकल्स आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं? That is called as what taxonomy? Chemotaxonomy। Now the second comes cytotaxonomy। कौन सा है दूसरा? साइटो। तो साइटो मतलब क्या होता है? सेल। हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, द प्लाज्म इनसाइड द सेल। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। तो साइटो मतलब होता है सेल। तो सेल कैसा पाया जा रहा है, how it is a cell? So based on the basis of cell, characteristics of cell, we give different classification, we give name to the organism, that is called as cytotaxonomy। So chromosome is a part of cell only, yes or no? Now the number of chromosome also varies। जैसे humans के अंदर diploid condition में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। if you go to ड्रोसोफिला, उसके अंदर बहुत कम होते हैं, 8 ही क्रोमोसोम होते हैं diploid condition में। लेकिन एक प्लांट है ऑफिक्लॉसम, कौन सा प्लांट है? उसके एक सेल में 1260 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम? 1260 क्रोमोसोम। द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। So the number of chromosome varies from one organism to another। So based on the number of chromosome also you can differentiate, है ना? आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम का शेप कैसा है, अरे पढ़ा था चैप्टर में शेप क्रोमोसोम का, 4 तरह के शेप पढ़े ना आप लोगों ने, कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मैक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, है ना। तो किस तरह क्रोमोसोम का शेप है, क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे अगर आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज साइटोटैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। सेल वॉल कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, जैसे हमने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरियम यूबैक्टीरियम, यस और नो। आर्कीबैक्टीरियम यूबैक्टीरियम में डिफरेंस क्या था, ऑन देयर सेल वॉल कंपोजिशन, याद है आप लोगों को, है ना। एक में पेप्टिडोग्लाइकन था, एक में सूडो पेप्टिडोग्लाइकन था, इसको हमने पढ़ा सूडो यूरिन पूरा था, याद है ना कुछ। So classification is not only based on morphology, it is based on multiple factors. The basis can be the characteristics of cell. उनके सेल के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी उनके टैक्सोनॉमी का आधार हो सकता है। और ऐसे टैक्सोनॉमी को बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। और तीसरी आती है हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कौन सा तीसरा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहती है कि जब आपको एक ऑर्गेनिज्म के, ध्यान से सुनना सभी को, वी आर स्टडिंग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ, विच इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। दो पढ़ ली हम लोग, कौन सी पढ़ी, दो, कीमोटैक्सोनॉमी और दूसरी क्या पढ़ी, साइटोटैक्सोनॉमी। एक पढ़ी कीमोटैक्सोनॉमी, दूसरी कौन सी पढ़ी, हाँ। अभी हम जो तीसरी पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कौन सी पढ़ रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, ध्यान से सुनना चाहिए। अभी आप लोगों के पास बहुत सारे प्लांट्स, नाउ यू वांट टू कंपेयर बिटवीन दीज मल्टीपल प्लांट्स, है ना। अगर 10-15 प्लांट से आप कंपेयर करना चाहते हो, इसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक, तो टू इंडिविजुअली स्टडी देम इन डिफरेंशिएट बिकॉज वेरी डिफिकल्ट। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम बहुत सारे प्लांट्स के या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लगभग सारे कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर लेते हैं, एंड वी स्टडी द कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर। कैसे होता है, ध्यान से सुनना सभी। तो जनरली वी हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस। तो एक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डालोगे कि आपने स्टडी किया सपोज एक मैंगो का प्लांट, तो हमने पे डाल दिया मैंगो। तो आपको बता दिया कि जो मैंगो है वो एंजियोस्पर्म का प्लांट है। कौन सा प्लांट है वो, एंजियोस्पर्म। तो जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका लिस्ट सामने दे देगा कि हमें जो प्लांट स्टडी किया मैंगो, उसके अंदर इसमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो उसमें लीफ के बारे में लिखा रहेगा कि जो मैंगो का लीफ है उसका तो रेटिकुलेट होगा तो पैरेलल होगा, स्टिपुलेट हो गया तो एक्स्टिपुलेट होगा, ससाइल हो गया तो पेटियोलेट होगा, है ना। कैसा होगा सब लिखा होगा उसके अंदर। उसके फ्लावर के बारे में, उसके स्टेम के बारे में, रूट के बारे में सब पे कुछ ना कुछ जानकारी दी होगी। जानकारी इन द सेंस ऑप्शन दी होगी, आपको टिक करना पड़ेंगे। वहां अगर लिखा होगा लीफ रेटिकुलेट पैरेलल, आप वहां से टिक करोगे उसमें रेटिकुलेट, देखिए मैंगो डाइकोट है मोनोकोट है, डाइकोट है। वहां पे रूट लिखा रहेगा फाइबरस टैबरूट, आप वहां टिक करोगे टैबरूट, तो बस कैसा है वो, डाइकोट। तो इस तरीके से अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं मैंगो के प्लांट के अंदर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर जाके वहां पे टिक कर दो। Sensitivity says numbers and codes are assigned to all characters in numerical text. What is assigned? Numbers and codes. Numbers and codes are assigned to all characters in which taxonomy? कौन सी taxonomy में, वैष्णवी? Numerical taxonomy। कौन सी taxonomy? तो तीन कंडीशन हो सकती है। आप जो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, प्लांट पढ़ रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर तो प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट होगा तो आप क्या टिक करोगे, प्लस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ के वेनेशन के बारे में, एक लिखा हुआ है रेटिकुलेट लिखा हुआ है, और एक वहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ है पैरेलल। तो रेटिकुलेट के सामने आप क्या टिक करोगे, प्लस, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है। क्या आपके लीफ में पैरेलल वेनेशन है क्या, नहीं, तो आप क्या टिक कर दोगे, माइनस। समझ में सभी को। लेकिन ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके प्लांट के लिए अप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टिल्ट रोड, क्या लिखा हुआ है, अब बताओ स्टिल्ट रोड किसमें पाया जाता है, शुगर केन, मेज, यस और नो, है ना, उसके अंदर पाया जाता है ना। लेकिन क्या शुगर, ये स्टिल्ट रोड मैंगो के प्लांट में होता है क्या। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगा स्टिल्ट रोड, तो आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे आप, जीरो। क्या लिखोगे यहाँ पे, जीरो। तो जीरो इज गुड फॉर नॉट अप्लीकेबल। जब कोई कैरेक्टरिस्टिक आपके प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो क्या लिखोगे आप, जीरो। लेकिन प्लस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट एंड माइनस फॉर कैरेक्टरिस्टिक इज एब्सेंट। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, आप अपने प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस माइनस जीरो के फॉर्म में कर देते हो, फिल कर देते हो। आपने एक बार फिल कर दिया तो आपका डेटाबेस तैयार हो गया, तैयार हो गया डेटाबेस। अब आप कभी टाइप करोगे मैंगो, तो मैंगो के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो आपने फिल किए तो निकल के आ जाएंगे।
तो यहाँ पर आप एक ही प्लांट के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। यस आप, तो इंडिविजुअली गो एंड मेक अ नोटबुक, इसमें सिंपल है, इसमें रेटिकुलेट है, एक प्राणा लिखते जाओगे तो कितने कागज भर जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर आप डालोगे तब वो कंपेरिजन में आ जाएगा। आपने सर्च किया रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट कौन कौन से मैंने स्टडी किए अभी तक की, तो लिस्ट में लिखा आ जाएगा। मैंगो स्टडी किया आपने, बैंगन ट्री स्टडी किया, ये स्टडी किया, वो स्टडी किया। यस सर, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ विच टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो साइरो टैक्सोनॉमी में जो बेसिस था आपका, वो बेसिस क्या था, सेल की स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक। कीवर्ड टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या था, द केमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में यू आर असाइनिंग, असाइन करना मतलब क्या, देना। मैं बोल रहा असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट होमवर्क। तो इस तरीके से असाइन कर रहा है, क्या असाइन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंबल्स, नंबर्स और कोड्स। मैंने क्या यूज किया वर्ड, नंबर्स एंड कोड्स। numbers and codes are assigned to they all characters. In which taxonomy, numerical taxonomy, plus for the characteristic is present or absent, minus for and zero for not absent. So मैं कहता देखो हेडिंग डाला तो ब्रांच taxonomy, पहले देखो कीवर्ड taxonomy। when कीवर्ड taxonomy में लिखिए when, टाइम कितना बचा है, 15 मिनट, ठीक है। when बहुत पढ़ने के बताया, when basis of taxonomy is chemical composition, क्या हो जाता तुम लोगों को, क्या कुछ गोटर कुछ चल रही है। The basis of taxonomy is chemical constitution और composition, एक ही मतलब होता है तुम्हें, chemical constitution, chemical composition, like metabolites, like metabolites क्या पाया जाता है इनके अंदर, metabolites कॉमा बायोमोलिक्यूल्स, metabolites कॉमा बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए आरएनए, प्रोटीन स्टार्च ऑयल, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए आरएनए, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एक्सपेक्टर। लिखा नहीं लिखा तुम लोगों ने, क्या लिखा भाई, क्या बताया मैंने, नहीं वो स्टार्टिंग से बोलो। मैं, हाँ, मैं द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी इज केमिकल कंपोजिशन लाइक मेटाबोलाइट्स, बायोमोलिक्यूल्स में आराम आ जाएगा डीएनए आरएनए, प्रोटीन स्टार्च ऑयल एक्सेट्रा। है ना, क्लियर हो गया सभी बात है। सेकंड लिखो साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, when organisms are given name based on the DNA they have, this is what type of taxonomy, क्या टिक करोगे आप, कीमोटैक्स, है ना। वेरी, साइटोटैक्सोनॉमी में लिखो basis of taxonomy, basis of taxonomy is cell, is cell, cells apostrophe s, characteristics, cells characteristics, cells characteristics, cell की characteristics है, cells characteristics, for example cell wall composition, क्या क्या है जाएगा उसमें, cell wall composition, type of plasma membrane, organelles, cell wall composition, type of plasma membrane, कौन से organelles हैं, organelles, comma, number of chromosomes, number of chromosome, structure of chromosome, etc. अरे फिर सभी को वेरी गुड। थर्ड लिखिए अभी आप लोग, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तीसरा कौन सा है, थर्ड इज व्हाट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर आ जाते हैं, है ना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, देखो नंबर्स एंड कोड्स,
numbers and codes are assigned. Numbers and codes are assigned to all characters. To all characters. सारे characters को क्या assign करते हैं हम? Numbers and codes. Numbers and codes are assigned to all characters. Full stop. Several characters can be studied together. Several characters can be studied together. Several characters can be studied together. है ना? बहुत सारे ऐसा सामने पढ़ सकते हैं ना? हाँ, तो लिखिए प्लस डैश लिखना है, प्लस कैरेक्टर इज प्रेजेंट। प्लस सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम? if the character is present. Minus symbol is used if character is absent. Plus character is used if character is present. Minus is used if character is absent, and zero is used if it is not applicable. Plus for character is present, minus for character is absent, and zero if character is not applicable. है ना? जैसे लिखो, नीचे लिख लो, specific softwares are used for this. Specific software softwares are used for software जो पहनने में आसान हो, पहनने में software are used. ऐसा समझ में सभी को? Very good. Now the whole plant kingdom is how classified? I am drawing. लिखना सभी को. तो प्लांट किंगडम को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है. एक है क्रिप्टोगेम्स, लिखते चलो हमेशा लिखते चलो, क्रिप्टोगेम, और दूसरे होते हैं फेनरोगेम. Plants are divided into two categories: cryptogams and phanerogams. Phanerogams. Cryptogams where sex organs are hidden. Phanerogams where sex organs are visible. यहाँ पे तीन कैटेगरी के लोग आते हैं: एलगी, ट्रायोफाइट्स, फॉर्म, और यहाँ पर आते हैं
बढ़िया दिख रहा है ना शायद। हाँ कोई तो सवाल लिख रहे थे हमारी नजर उसके टाइम पे थी वो दिखा था लोगों को बढ़िया देख रहे थे ऐसी में हाँ ठीक है देख लिया था मैंने नहीं सर 2 मिनट
चलो कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। एलगी ब्रायोफाइट एक टॉपिक हमारे बीच में हो जाएगा। चार ही पढ़ रहे हैं आपको, जनरल कंप्लीट एंजियोग्राम सिलेबस में नहीं है आपको, तो चार पढ़ेंगे हम। एलगी ब्रायोफाइट जो एक एक दिन में चार, चार दिन में मजा करना होगा। एक दो दिन रहेगा ना, दो दिन क्या सैटरडे को टेस्ट है ना, सैटरडे को टेस्ट में ज्यादा फ्राइडे को पढ़ाया आपको वहां तक आएगा। ठीक है हाँ? देखो पाँच ने पढ़ा दिया आपको। पाँच का पाँच क्यों आ रहा है? कितने पढ़ा है आपको अभी? रिजल्ट कौन सा चल रहा है अभी? माइक्रो चल रहा है। माइक्रो चल रहा है ना, तो सर को मतलब पाँच का मतलब नहीं कोई, हम एक भी नहीं पढ़ पाते। माइक्रो चल रहा है ना, माइक्रो का टेस्ट ना, पाँच का टेस्ट चल रहा है। ऐसा बहुत नहीं पढ़ रहा है सर को बोला था, सबको सर आप ही बोला। हरे कृष्णा। आज मतलब थोड़ी कंप्यूटर पढ़ने में मतलब मानो तुम्हारा ऐसे नहीं आने वाले।